मैम Sir, yes. हाँ, एक मिनट बोल You लेना। said something very profound. You said something very profound. You said something very, very profound. I'd like to add to it. Sir, with due respects, it was music to my ears to hear a leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को. And quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मान जनक language. How many times has the Prime Minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? They stood in the well and shouted. Will the Honorable Member Tarun Gogoi, his son, Gaurav Gogoi, apologize for the number of times they've called abusive names to the PM? Today he is ironing out all that. He is whitewashing all that. That's not allowed. He should have the grace. He should have the grace to admit that they have abused the Prime Minister. It was wrong and they shall not do it again. Through you, Honorable Speaker, through you, I request the Finance Minister to read the speech of the Prime Minister during the last session. His entire speech was abusing former Prime Ministers. I have written a letter. I have written a letter to you putting on record a number of times he has abused the chair of the former Prime Ministers. So please before pointing fingers, अपने घर में खुद जाके. If it is this very clearly that I have to read the speech, Honorable Finance, I do not expect you. What is this? Stood up here. Honorable, what is this going on? You should not have the patience to listen. Have the patience to listen. You should have the patience to listen. You read through the speech. And look at the way in which all of them are shouting. Look at the way in which all of them are shouting. Now, Look at the way in which all of them are shouting. have the patience. Right? What Gogoi said is wrong? Gogoi said is wrong? Is that what they're saying? Is that what they're saying? If Gogoi had the large-heartedness to say that we should not abuse anybody, what's going on? So that shows the attitude of the Congress party. गौरव जी, आप बजट पे जो कुछ बोले हैं, आप आगे बढ़ो सर. आप तो विषय पर मैं नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ना चाहता हूँ. यही आपका स्ट्रेटेजी है. यही स्ट्रेटेजी है आपका. सुनने की ताकत नहीं है. दोबारा ये देखिए, यही है, यही स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी, ये है सर. बार-बार started with a good spirit to say that we should respect the Prime Minister. None of them will agree. They don't want to agree. I'll get up every number of times that when an honorable member says you respect the Prime Minister, and that should be the attitude there. No, that member is honorable enough, but not the rest. अध्यक्ष महोदय, इधर अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय बीच में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ओके. अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है, उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा. ये टैरिफ कहाँ आ गया बीच में इस बिल में? सर, टैरिफ क्यों आया मैं बताता हूं. मैं टैरिफ क्यों आता, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रश्न में को उत्तर देता हूं. ये टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है. ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है. ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है. ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है. और सबसे महत्वपूर्ण, ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है. हमारे किसानों को बचाना है सर. इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूचित किया है. और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत, उनका पर्सनल मैटर होता है. वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं. देश के पक्ष में. अब बैठिए,
आप साबित है क्या देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या लॉ बोल रहे हैं और सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर ऐसे सर हमें बोलोगे तो? किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर इसी उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ्स घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं नेगोशिएट। फिर आप- राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नेगोशिएट किया। आपका विषय- तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ्स घटाएगा, और ये भी हम जानना चाहते हैं क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है देखिए कि माननीय जो सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, 2-6 में क्लियर नियम प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं और बार बार विषय को डाइवर्ट करते हैं और आप फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। के बारे में बोलेंगे सर। बोलिए, लेकिन टैरिफ सर कॉमर्स मंत्रालय से है सर, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है सर। क्या जानना ये- चाहता है? ये- आप 15 से 19 जो इस पे बोले ना, टैरिफ को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हाँ। ट्रेड डेफिसिट को लेके पूरा देश चिंतित है मैं सर। हम आपको पूरा फिर बोल देश रहा हूं, लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तव्य को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है, आप बोलिए। सर पूरा देश देख रहा है सर। हाँ ठीक है, सदन तेरा देश सदन देख तो रहा है। नियमों से चलेगा, नहीं चले नियमों से चलेगा। सदन पूरा देश आप देख रहा है नियमों से सर। चलना है, बोलिए तो आपके- ठीक। सदन नियम पूरा से देश बाहर नहीं बोलने देंगे। सर बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं, बार और आप बीच बीच में डिस्टर्ब मत बार ऐसे कीजिए। उदाहरण आते हैं कि नीचे सरकार बैठिए, गुस्सा मत सरकार एक करिए कदम लेती सदन के है अंदर। और फिर 2 कदम पीछे जाती है। उसका एक और उदाहरण है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सरकार ने 2015 में लाए। 2015 में ये सरकार ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन्होंने शुरुआत की, और अभी हाल की बजट में जब इनका पूरा ये स्कीम फियास्को हो गया, पूरा स्कीम फ्लॉप हो गया, अब ये स्कीम को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मंशा ये था कि बाहर से जो गोल्ड का इंपोर्ट आता है वो घटना चाहिए। इनका प्रेस रिलीज में यही सरकार का ये था जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आया। अब मैं जानना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री से कि सॉवरेन गोल्ड इंपोर्ट्स सिंस 2016 is it gone up or has it gone down? Which one of your objectives of the sovereign gold bond scheme have you achieved? We want to know. You got the sovereign gold bond scheme thinking that government borrowings, it will help government borrowings. But now your liabilities are such that even in this budget you have to pay around 8,900 crores, and in a few years from now the government liabilities has exceeded by 930%, and you have to pay close to 1 lakh crores, and that is why close to 67 tranches of sovereign gold bond payments have been withheld by this government. And this shows, again, that in this government they only care about headlines, they only care about speeches, they only care about optics. They don't know what is happening on the ground. They don't know what is happening on the ground. अब बात आती है जीएसटी की। जीएसटी बोल सकते हैं ना सर? अभी वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि मैम प्लीज हैव द पेशेंस मैम, you can say all of this in your reply ma'am. Please on all of, ma'am, you hear your speakers also. You hear when your speakers come, you tell them also the same thing. Please tell them the same thing. Please tell them the same thing. Now I'm telling, if I'm saying anything which is not related to finance economy, you tell. Now in GST,